All right, taking you through some big breaking news. Coming in, massive centre versus AAP government escalation. President forwards sack AAP government's demand. President Draupadi Murmu acts after BJP demands for sacking. The president forwards that demand to the Home Ministry. The BJP says Chief Minister in jail, constitutional crisis now in Delhi. AAP says BJP wants to dismiss Aam Aadmi Party government through the back door. संजय सिंह स्पीकिंग ऑन दिस, लिसन इन। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। ये प्रेसिडेंट रूल घोषित करो ना, तारीख कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो, हम कहाँ पीछे हैं। Kumar Kunal joining us on the phone line. Kumar, please give us more clarity on this case. We hear that the President Draupadi Murmu has taken up this complaint from the BJP asking them to sack the Aam Aadmi Party government from Delhi. What does that mean? They want the government to be disbanded? Is that what has been asked for? Actually, on 30th August, BJP MLAs met President Draupadi Murmu and they demanded that immediately the AAP government should be dismissed. They cited the reason that there is a constitutional crisis in Delhi. There are several things which are happening. Actually, even CM is in jail and he is not participating. He is not clearing any files, and that's why Delhi is suffering. And keeping that letter in mind, keeping that meeting in mind, Draupadi Murmu has written a letter to Union Home Ministry, in fact, to Union Home Secretary, to take a cognizance on the demands made by the BJP MLAs. And the President Office wrote a letter on 6th of the September, and the letter mentioned that now they have to take a call about it. So definitely now the ball is in the court of Home Ministry and they have to take a call. They might issue a notice to Delhi government on the allegations made by the BJP MLAs, or they can ask even Lieutenant Governor about the current constitutional situation in Delhi. All right. So Vijayendra Gupta of the BJP joins me on the phone line. Kumar Kunal, stay with us. Vijayendra Gupta ji, we hear that President Draupadi Murmu has forwarded your demand to the Home Ministry. What exactly are your demands? Why do you want the Aam Aadmi Party to be out of Delhi? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है। पिछले 5 महीने से यहाँ पर असेंबली का सेशन नहीं हुआ। 5 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही। दिल्ली के अंदर थोड़ी सी बारिश में आपने देखा किस तरह से लोग डूब कर मर गए, बच्चे डूब के मर गए, सड़कों की बुरी हालत है, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, एजुकेशन की बुरी हालत है। तमाम फैक्ट्स हमने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने रखे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है यहाँ पर जो सीएजी की रिपोर्ट है पिछले 8 साल से, उसको टेबल नहीं किया जा रहा, उसको छुपाया जा रहा है। इसी तरह से 6th दिल्ली फाइनेंस कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और इसके साथ साथ जो करप्शन का इशू है वो हमारे सामने है। लीकर स्कैम है, डीजेबी स्कैम है, हेल्थ हॉस्पिटल्स के कंस्ट्रक्शन में स्कैम है। इसके बाद दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो बनाई गई उसमें स्कैम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो दिल्ली में लागू नहीं करने दी जा रही। आयुष्मान भारत जो है अति महत्वाकांक्षी योजना, जो दिल्ली के गरीबों के लिए एक सपना है, पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में 5 लाख रुपए का जो लाभ मिल सकता है हर साल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, वो उससे दिल्ली के गरीबों को दूर रखा जा रहा है। इसी तरह से पीएम अभीम योजना है जिसमें 2406 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के लिए सैंक्शन हो गए दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो ये सारी बातें हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने रखी थी और उनके समक्ष हमने ये मांग की थी कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब नैतिकता के आधार पर
इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, वो बताएं कि जेल से उन्होंने कितने फैसले लिए, कौन सी फाइल साइन हुई है। जिस सरकार में 2 करोड़ दिल्ली की जनता का भविष्य अंधकार में है, जो 2 करोड़ लोग दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और ये सारी बातें हमने अपने मेमोरेंडम में कही थी। हमें इस बात की खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने हमारे मुद्दे जो हम लोगों ने उठाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की बात हुई, आपने ये मैंडेटरी है आपका 6th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना, जो 1 अप्रैल 2021 को इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, जिसका पीरियड ही 5 साल का था और 4 साल निकल गए। तो अब तक वो आपने वो कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। वो कब कॉन्स्टिट्यूट करोगे, कब रिपोर्ट आएगी, कब वो फ्लोर पर आएगी असेंबली के, कब वो इम्प्लीमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने कंप्लीट वॉयलेशन जिसको कहा जा सकता है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना करके, संविधान में आपकी जो आस्था है वो साफ रूप से प्रकट हो रही है कि आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। Vijender ji, thank you very much for joining us on that. The BJP is clear with its stance that there's been no governance in the last few months, no cabinet meeting, no assembly session for the last 5 to 6 months, asking for the Aam Aadmi Party to be disbanded in the national capital.